So now let's take the next question. The question is, a circle with center 2, 3 and radius 4 intersect the line x plus y equal to 3 at point P and Q. If the tangents at P and Q intersect at S alpha comma beta, then what is the value of this? Basically आपको point of intersection of tangents find करना. So the question is, let's say this is the circle whose center is 2, 3. This is the center 2, 3. This is the center of the circle and its radius is 4. इसका radius is 4. The question is, a line x plus y equal to 3 intersected at P and Q. This is the line, let's say x plus y minus 3 equal to 0. Correct? At P and Q, तो ये P और Q पे से intersect कर लिया इसको. Now the tangent to this intersect at S. तो आपने P पे tangent ड्रॉ किया and आपने Q पे tangent ड्रॉ किया. They are intersecting at S. Then you have to find the point of this. This is alpha कॉमा बीटा. ठीक है, आपको अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. देखो आपको पॉइंट पी और क्यू तो पता नहीं है. अब वन वे टू सॉल्व दिस इज आप पॉइंट पी एंड क्यू फाइंड करो बाय सॉल्विंग दिस सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. बट वो बहुत कैलकुलेटिव प्रोसीजर होगा. ठीक है, तो विदाउट इवन फाइंडिंग पी एंड क्यू यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज वी नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पी क्यू बाय कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट. बिकॉज फॉर एस this point line PQ is the chord of contact. What is the chord of contact? Tangent के point of intersection को point of contact को हमने join किया. This is the chord of contact. And what is chord of contact of a circle? Chord of contact is PQ and we know what is the equation of chord of contact? T is equal to 0. This is the chord of contact, right? So अब let's see. इसका equation पता है आपको and we can find the equation of PQ by using T equal to 0. हम कंपेयर कर लेंगे, we'll get the answer. तो इसके लिए आपको पहले सर्कल का इक्वेशन लिखना होगा. तो what is the equation of circle? Equation of circle is x minus 2 square plus y minus 3 square. Center 2, 3, right? And radius is 4. तो ये r square मतलब 16 होगा. So this is x square plus y square minus 4x minus 6y and this is 4 plus 9 minus 16 is equal to 0. So what is the equation of the circle? This is x squared plus y squared minus 4x minus 6y or this is minus 3 equal to 0. This is the equation of circle. And you can see for this circle, what is the equation of chord of contact PQ? This is T equal to 0. तो व्हाट इज टी इक्वल टू 0? रिप्लेस एक्स स्क्वायर विद एक्स एक्स वन. ये एक्स वन वाई वन, इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना है. तो रिप्लेस एक्स स्क्वायर विद एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर विद वाई वाई वन माइनस रिप्लेस एक्स विद एक्स प्लस एक्स वन बाई टू. तो ये क्या हो जाएगा? बाई टू के कारण टू ये कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 2 एक्स प्लस अल्फा माइनस ये 6 वाई प्लस बीटा बाई टू. तो वो माइनस 3 होगा. दिस इज 3 वाई प्लस बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0. वो 2 और 6 कैंसिल कर दिया और 4 हमने यहाँ का डिनोमिनेटर का कैंसिल कर दिया. ठीक है, सो इफ आई अरेंज दिस यू कैन सी दिस इज अल्फा एक्स और ये माइनस 2x. दिस इज अल्फा माइनस 2x प्लस बीटा, यहाँ से बीटा, दिस इज बीटा माइनस 3y एंड हियर यू विल हैव माइनस 2 अल्फा माइनस 3 बीटा और ये माइनस 3 इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ PQ. दिस इज बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ T इज इक्वल टू 0. करेक्ट. बट देखो आपको PQ का इक्वेशन तो गिवन नहीं है बिकॉज इट इज गिवन दैट दिस PQ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड सर्कल. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ PQ? दिस इज x प्लस y minus 3 equal to 0. This is also the equation of PQ. That means you can say these two equations must be identical because both are representing same line. So what is the condition for two equations to be identical? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. तो अब हम वो अप्लाई कर देते हैं. So this is now if I apply this, so now I think let's remove this. अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है. This is A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा? देखो -2 अल्फा -3 बीटा -3 डिवाइड बाय -3. ठीक है. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 कंडीशन फॉर आइडेंटिकल इक्वेशन.
अब आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल होंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो नाउ लेट्स टेक वन इक्वेशन इज अल्फा, इसको इनको कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन इफ आई टेक दीज टू। ठीक है, इफ आई टेक दीज टू, तो व्हाट इज द इक्वेशन, इसको अरेंज कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को देख लेते हैं। दिस इज माइनस तो कैंसिल कर दो, दिस इज 3 बीटा माइनस 9। ठीक है, दिस इज 3 बीटा माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3। सो व्हाट इज दिस, ये 3 बीटा तो कैंसिल ही हो गया। दिस इज 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 6। सो अल्फा का वैल्यू माइनस 6 हो गया। एंड व्हाट इज बीटा, अल्फा का वैल्यू माइनस 6 पुट कर दो, दिस इज माइनस 6 माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो बीटा इज इक्वल टू माइनस 5। सो अल्फा एंड बीटा दैट आर दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने फाइंड करने थे। करेक्ट, अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज अल्फा इज माइनस 6, so this is minus 24। ठीक है, और बीटा इज माइनस 5, so this is minus minus plus 35। so what is the answer, this is equal to 11। so this value is equal to 11। ठीक है, so this is very important question। कभी भी आपके पास अगर लाइन किसी सर्कल को या किसी पैराबोला को या हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड आपको टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो डायरेक्टली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आस्क्ड इन जेईई ऑलरेडी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। करेक्ट, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द लाइंस विद द 3 tangents टू द सर्कल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h प्लस के। ये सर्कल का इक्वेशन है, दीज आर द 3 tangents एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h प्लस के। मतलब आपको बेसिकली उस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, सो सी हियर, इफ यू हैव लेट्स से दिस इज द सर्कल एंड दीज आर द 3 लाइंस व्हिच आर tangent टू दिस। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज वन tangent, दिस इज वन tangent, दिस इज अनदर tangent एंड लेट्स से दिस इज द थर्ड tangent। ऐसा ही होगा। ठीक है, so one tangent is x minus y plus 2 equal to 0. This is one tangent. This is the second tangent, which is 3x minus 4y equal 3x minus 4y plus 6 equal to 0. This is the second tangent, and the third tangent is 4x minus 3y plus 1 equal to 0. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, दिस इज A, लेट्स से दिस इज B, दिस इज B एंड दिस इज C। सो यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ दिस सेंटर, मतलब इस सर्कल का सेंटर। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इफ दीज आर द टेंजेंट टू दिस सर्कल, हमने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किए, तो यू कैन सी यू हैव टू फाइंड द इन सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC का इन सेंटर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इफ यू हैव टू फाइंड द इन सेंटर, वन मेथड कैन बी, आप एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड कर लो, बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो आपने इन दोनों का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर फाइंड किया, इनका एंगल बाइसेक्टर फाइंड किया, और वहां से आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया। बट उसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, बिकॉज वी डोंट नो कि दिस विल बी एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, वो डिपेंड करेगा डायग्राम कैसा है। ठीक है, किसी केस में ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता था। ठीक है, तो वी डोंट नो वेदर द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा प्लॉटिंग वगैरह आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू हैव टू जस्ट फाइंड द इन सेंटर, जैसे दिस इज द इन सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, वी कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। करेक्ट, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशंस। तो आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशन, यू कैन सी इफ आई मल्टीप्लाई दिस 4, दिस इज, इसको हमने 4x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस, जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे दिस विल बिकम y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आई एम जस्ट फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यू कैन इजीली चेक दिस। दिस इज y इक्वल टू 7, तो ये y इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 7 पुट करने पर दिस इज माइनस 5, तो दिस इज 5,7। so दिस पॉइंट इज 5,7। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया जस्ट सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक है,
सिमिलरली इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 4, so this is 12x and this is minus 16y and this is plus 24 equal to 0. हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 3, 12x minus 9y plus 3 equal to 0. If I subtract this, you can see this is 7 minus 7y, subtract कर दिया, this is plus 21 equal to 0. So what is y? This is equal to 3. ठीक है, तो y equal to 3 पुट कर दो, तो this is 3x minus this is 3, this is 12 और ये 6 minus 6, this is minus 6 equal to 0. तो x equal to 2. So what is this point? This is 2, 3. This is 2, 3 and what is this point? इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. So this is, if I subtract these two, इन दोनों को subtract करोगे, this is minus x minus 2 equal to 0. तो x is equal to minus 2. तो x का वैल्यू तो minus 2 हो गया और y का वैल्यू x equal to minus 2 पुट कर दो, तो this is y is equal to 0. So you can see we have got the point of intersection of these three tangents. तो ये तो easily आप फाइंड कर सकते हो point of intersection of tangents. ठीक है, अब how will you find the in center? तो in center के लिए आपको side length फाइंड करना होगा. तो how will you find the side length? You can see what is the side length of this? We can see distance formula apply कर दो. So what is this side length? This is under root of 3 square plus 4 square which is equal to 5. We can check this. This is under root of 3 square that is 9 plus under root of 4 square that is 16. Again this is 5. So you can check this is 5. So you can see this is दो साइड पे ये बराबर ही आ गई. This side is equal to this side. अब थर्ड क्या है, इसको भी चेक कर लेते हैं. दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 3 9 प्लस 49. So this is equal to root 58. 4 square, yes, this is 7. No, sorry, this is 49. 7 plus 7, हाँ 49. So this is 7 root 2. This is 7 root 2. This is 7 root 2. तो आपके पास अब now we have all the three sides and you know how to find the in center of this triangle. Otherwise आप in center find करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं. ये isosceles triangle है, isosceles triangle में in center जो होगा, ठीक है, that will be on this line, but because ये perpendicular bisector भी होगा, median भी होगा, correct, for this in center. तो आप उसका equation भी find करके directly find कर सकते हैं. Otherwise what you can do is you can apply the formula. What is the formula for in center? This is ax1, so this is 7 root 2 into 2, this is 14 root 2 plus this is, अच्छा what you can do is, आप और कैलकुलेशन में थोड़ा और इजी करके दिखा देता हूँ. तो दिस इज सी, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो what you can do is, if I join this in center, so you can see this will be perpendicular and this is perpendicular bisector, because isosceles triangle में perpendicular ड्रॉप करोगे इक्वल साइड के करस्पॉन्डिंग, तो ये बाइसेक्टर होगा. ठीक है, सो दिस लाइन is definitely perpendicular to this line. So what is the slope of this? This is equal to -1. ठीक है, इसका स्लोप 1, इसका स्लोप 1, तो इसका जो स्लोप होगा that will be -1. ठीक है, so this is y minus y1 is equal to m. ठीक है, इसका स्लोप -1, तो m into x minus x1. You can see what is the equation of this line I am finding. This is the slope of this line will be, इसका स्लोप है 1, तो इसका स्लोप -1 होगा. So what is the line? This which is passing to 2, so this is y minus y1 m into x minus x1. So this is y minus 3 is equal to minus x plus 2. So what is this? X plus y equal to 5. X plus y is equal to 5, right? So this line, this is definitely x plus y equal to 5. आप तो ध्यान से देखो, इसका जो इन सेंटर होगा h, k, वो डेफिनेटली इस पे लाई करेगा. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. सो व्हाट इज दिस? h प्लस के
इज इक्वल टू 5. दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड दिस. इसमें देखो आपको कैलकुलेशन बता लिया हमने, ठीक है. दिस इज h प्लस k इज इक्वल टू 5. अदरवाइज आप इन सेंटर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इन सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल. अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होता तब तो फिर आपको यही करना होता है, ठीक है. यहाँ पे ये वैल्यूज इस तरह से गिवन है ताकि आपको डायरेक्टली h प्लस k का वैल्यू मिल रहा है. अदरवाइज इन जनरल आपको फिर यही फॉर्मूला यूज करके ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन को कैसे रिड्यूस किया, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमने इसकी सिमेट्री को यूज कर लिया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट. Now let's take the next question. Now this is one very interesting question. The question is, let circle C1 be obtained by on rolling this circle upwards 4 units on the tangent T to it at the point 3, 2. Let C2 be the image of C1 in T and A and B are the centers of the circle C1 and C2. A and B are the centers of circle C1 and C2 respectively. And M and N be the respectively foot of perpendiculars drawn from A and B on x-axis. Then the area of trapezium A and B. ठीक है, A, M and B का आपको एरिया फाइंड करना है. तो देखो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आपके पास क्या है, लेट्स अ सर्कल C1 इज ऑब्टेन्ड ऑन रोलिंग दिस सर्कल, ठीक है. तो मान लो एक ये सर्कल है, ठीक है, ये आपका इनिशियल सर्कल, इसको हमने किस पर रोल किया है, C1 इज सर्कल ऑब्टेन्ड 4 यूनिट्स अपवर्ड, इसको हमने रोल किया, देन वी गॉट अ सर्कल C1. और किस पर रोल किया है, ऑन द टैंजेंट T, ठीक है. किस पॉइंट पर, 3/3, मान लो ये पॉइंट 3,2 है, तो ऐसे इस पे टेंजेंट है, इस पे इसको हमने रोल किया, ठीक है. तो ये रोल करने के बाद जो सर्कल बना, दिस इज सर्कल C1, ये सर्कल C1 आप बोलते हैं, ठीक है. C2 विद द इमेज ऑफ C1, तो ये C2 इसका ऐसा इमेज बन गया अबाउट द टेंजेंट, ठीक है. C2 विद द इमेज ऑफ C1 इन T, राइट, ये C2, तो ये इसका मिरर इमेज आ गया, राइट. दिस इज ऐसे मिरर इमेज. A and B are the centers of this circle. तो ये देखो A और B इसके सेंटर्स हैं, C1 और C2 के, राइट. एंड M and N are the foot of perpendicular from it on x-axis. यहाँ से आप देखो C1 और A और B से हमने सेंटर्स पे, सॉरी x-axis पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए. तो आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम. आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, ये M और ये N. तो ये आपका अल्टीमेटली क्वेश्चन है. तो अब देखो इसका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहेगा. तो इसी ईयर भाई आपको ए के अगर कोऑर्डिनेट मिल गए और बी के कोऑर्डिनेट मिल गए तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा. क्यों, बिकॉज व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो ये कैसे, ये जो साइड्स है वो पैरेलल साइड्स है, तो इनके जो वाई कोऑर्डिनेट होंगे वो इस साइड लेंथ होगा और ये साइड लेंथ होगा, करेक्ट है. एंड इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उनका डिफरेंस ही इसका क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स होगा. तो बस आपको क्या फाइंड करना है, अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, वहां से यू विल गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो ये इसका प्रॉपर अप्रोच है, राइट. अब लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम. अब मैं इसको थोड़ा क्लियरली ड्रॉ करता हूँ. तो लेट्स से, अच्छा ये सर्कल सी, इसका सेंटर्स क्या है, दिस इज 2, 3. Center of the circle is 2, 3, and what is the radius of the circle? This is under root of 4 plus 9 minus 11, मतलब √2 इसका रेडियस होगा, ठीक है. तो लेट्स से दिस इज द सर्कल, ये x एक्सिस, मैं y एक्सिस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज की जरूरत नहीं है अपने को यहाँ पे. सो लेट्स से दिस इज द सर्कल whose center is 2, 3, ये जो आपका इनिशियल सर्कल है, ठीक है. अब इस पे कोई पॉइंट है 3, 2, ये 3, 2, दिस इज 3, 2. इस पे वी हैव ड्रॉन द टेंजेंट T. यू कैन सी इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज टेंजेंट T, करेक्ट. नाउ दिस सर्कल, इसको हमने रोल किया इस पे बाय 4 यूनिट्स, ठीक है. तो ये 4 यूनिट हमने इसको रोल किया टू रीच लेट्स से टू दिस सर्कल, ठीक है. तो ये हमने 4 यूनिट्स अब इसको रोल कर दिया, राइट. दिस इज 4 यूनिट्स, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दिस इज 4 यूनिट्स. अब दिस इज द सर्कल C1, इसका जो सेंटर है दिस इज सेंटर इसका A, इसका मिरर इमेज हमने लिया अबाउट T. तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस सर्कल. सर्कल का मिरर इमेज सर्कल ही होगा, ठीक है.
इसी के अबाउट मिरर इमेज मतलब ए का मिरर इमेज फाइंड कर लेंगे और रेडियस तो सेम ही रहेगा इसका, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ आपको ए एम बी एम का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ सी वी आर जस्ट फोकसिंग हाउ कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ए, इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो नाउ सी फर्स्ट थिंग यू कैन सी हियर, अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो आई कैन से इफ आई जॉइन दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी 4 बिकॉज ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये परपेंडिकुलर है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा, करेक्ट। तो यू कैन सी हियर इफ यू हैव अ पॉइंट 2,3, इससे 4 डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट ए फाइंड करना है अपवर्ड। तो आप सिर्फ इसका अगर स्लोप फाइंड कर लें तो यू कैन अप्लाई द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा। तो उसके लिए आपको इस लाइन का, इसको अगर हम सी सेंटर बोलते हैं, दिस इज सी ए का आपको स्लोप फाइंड करना होगा। तो वो फाइंड करना भी इजी है बिकॉज व्हाट इज द टेंजेंट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये जो लाइन है सी लेट्स से दिस इज पी, तो ये जो रेडियस है इसका स्लोप क्या होगा, दिस इज स्लोप ऑफ सी पी, दिस इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, you can see this is -1, y2 minus y1 3 minus 2 upon 2 minus 3 मतलब -1। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली बिकॉज रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे। तो इस लाइन सी ए का जो स्लोप है दैट इज स्लोप ऑफ सी ए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बिकॉज ये और ये पैरेलल होंगे। सो आई कैन से इसका जो tan थीटा है दैट इज 1, इसका जो थीटा होगा दैट इज एंगल विद एक्स एक्सिस दैट विल बी 45 डिग्री। तो कैन आई डायरेक्टली से व्हाट इज द पॉइंट ए, दिस इज 2 प्लस आर, आर क्या होगा 4 डिस्टेंस अपवर्ड, तो +4, तो दिस इज 2 प्लस 4 cos थीटा दैट इज 45 डिग्री प्लस 3 दैट इज 3 प्लस 4 sin theta. I hope this is clear. x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta. So you can see what is this coordinate of A. This is equal to 2 plus 2 root 2. ये 1 by root 2 cancel कर दो. This is 3 plus 2 root 2. So we have got what is the coordinate of A. ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन तो हो गया सर। अब क्या फाइंड करना है? Now we have to find the coordinate of B. अब B फाइंड करने के लिए you know that this will be the mirror image of this. बराबर, बिकॉज ये सर्कल ये इसका मिरर इमेज है, right? So if you know the coordinate of A, this is the coordinate of A, you know how to find the coordinate of its mirror image. You can easily find by using the formula, right? But उसके लिए आपको t का इक्वेशन फाइंड करना होगा। तब how to find the equation of tangent at a point x1, y1? We know that is t equal to 0. Replace x5 with x1, y2 y1, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे तुम डायरेक्टली बोल सकते हैं बिकॉज ये देखो 3, 2 है, तो और इसका स्लोप क्या है, दिस इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, दिस इज y माइनस, दिस इज एट 2, 3, y माइनस y1 और इसका स्लोप है 1 इंटू x माइनस x1। आई होप दिस इज क्लियर। 3, 2 पे टेंजेंट का इक्वेशन आप डायरेक्टली फाइंड कर लो, अदरवाइज आप t इक्वल टू 0 कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज सॉरी दिस इज y माइनस y1, दिस इज 3, 2, this is y minus y1 m into x minus x1. So what is this equation? This is x minus y minus 1 equal to 0. This is the equation of this tangent. अब we have to find the coordinate of point B. तो उसके लिए आप ध्यान से देखो, ये A, इसका mirror image about this line is x minus x1 upon A, this is 1, is equal to y minus y1 upon B minus 1 is equal to -2 ax1 plus by1 plus c। इसका मतलब दिस कोऑर्डिनेट को इसमें पुट कर दो, तो जैसे आप ये पुट करोगे तो x का वैल्यू 2 plus 2 root 2 और y का वैल्यू 3 plus 2 root 2 यहाँ पे पुट करोगे, दिस विल बिकम -1 और ये -1, दिस इज -1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 2। आई होप दिस इज क्लियर। यू कैन सी दिस। अब ये देखो, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 2, इनडायरेक्टली ये फाइनल वैल्यू दिस विल बिकम 2। ठीक है, ये हमने क्या किया, इमेज फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सो नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x? यू कैन सी हियर दिस इज x, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस, x विल बी इक्वल टू, यू कैन सी दिस इज 2 plus 2 root 2, 4 plus 2 root 2, दिस इज 2, इसको बराबर कर दो इसको, दिस इज 4 plus 2 root 2 एंड व्हाट इज y, दिस इज, यू कैन सी दिस इज माइनस, दिस इज प्लस,
तो दिस इज 3 माइनस 2 मतलब 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 रूट 2। तो ये जो पॉइंट है दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ विच पॉइंट ए इन दिस लाइन, दैट इज दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। ये वर्टेक्स पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ गए। So you can see now what is the coordinate of A we have got. This is equal to this point. This is the coordinate of A. And what is the coordinate of B? This is the coordinate of B. ठीक है, अब हम फाइनल एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए वी वांट दिस, यू कैन सी ये हमको एरिया फाइंड करना है। तो नाउ सी व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस साइड प्लस दिस साइड। तो अब मैं एरिया लिख देता हूँ, दिस इज एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये पैरेलल साइड इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट बिकॉज ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये लेंथ y कोऑर्डिनेट, ये लेंथ। तो दोनों के y कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, दिस इज 1 प्लस 2 रूट 2 एंड दिस इज 3 प्लस 2 रूट 2, दिस इज 1 प्लस 2 रूट 2 विच इज 4 प्लस 2 रूट 2, 4 प्लस 4 रूट 2। इन दोनों का हमने ऐड कर दिया y कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स क्या होगा, तो यहाँ से आप ध्यान से देखो a का जो x कोऑर्डिनेट होगा और b का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ये दोनों पॉइंट्स होंगे। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ दीस टू, यू कैन सी ये x कोऑर्डिनेट ऑफ a, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ b, इनका डिफरेंस क्या होगा, यू कैन क्लियरली से दिस इज इक्वल टू 2, so this is into 2। so what is the final answer, this is 4 plus 4 root 2, that is option 2 is the answer for this question। okay, so I hope you have understood this, कैसे इसको सॉल्व किया है, you can check this question, right? So that's it for this question। so now let's take the next question। so this is a modified question, this question has been asked, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई में आ चुका है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके एक क्वेश्चन आया है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर फॉर विच द लाइन x plus y equal to 0 bisects two distinct chords drawn from the point this 1 plus a upon 2 1 minus a upon 2 on the circle this। ठीक है, मतलब दिस पॉइंट यू कैन सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्वेश्चन में मेंशन भी है। द क्वेश्चन इज लेट्स से दिस इज द सर्कल, ठीक है। नाउ द कंडीशन इज इफ यू हैव सम पॉइंट p, लेट्स से दिस इज पॉइंट p, ठीक है, विच इज 1 प्लस a बाय 2 1 माइनस a बाय 2, ठीक है। नाउ the set of values of a square for which the line x plus y equal to 0 bisects two distinct chords drawn from a point this on this side। मतलब आपने यहाँ से मान लो दो chord ड्रॉ किए, this is one chord and let's say this is another chord, so they are saying that this line x plus y equal to 0, ये सिर्फ मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ किया, x plus y equal to 0, ठीक है। This chord, this line x plus y equal to 0 should bisect the two chords which are drawn from the point 1 comma point p, ठीक है। मतलब this is bisecting, this is bisecting, ठीक है, ये दोनों bisect करना है, ठीक है। So what is the range of values of a, that is the question here, ठीक है। So now see here, if you take any point on this, ठीक है, ये point देखो ध्यान से, if I take this point, you can see this point is alpha comma minus alpha, ठीक है। दिस इज अल्फा कॉमा माइनस अल्फा बिकॉज यू कैन सी दिस इज द पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट एंड दिस इज लाइंग ऑन दिस लाइन। तो इस पॉइंट को हमने अज्यूम कर लिया दिस इज पॉइंट अल्फा कॉमा माइनस अल्फा बिकॉज ये इस पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर ये मिड पॉइंट है अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से हियर दैट दिस पॉइंट आई कैन फाइंड इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड ए, कैसे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यू कैन सी हियर व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यू कैन इजीली राइट द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन इफ आई जॉइन दिस देन दिस लाइन एंड दिस लाइन शुड बी परपेंडिकुलर बिकॉज ये मिड पॉइंट है, ये अगर सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया तो दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, तो वहां से भी आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, एनी विच वेज यू कैन अप्लाई कंडीशन, ठीक है। सो यू कैन सी हियर what is the slope, what is the center of this circle, इसका आपने 2 से डिवाइड किया, this is x square plus y square minus 1 plus a by 2 x minus 1 minus a by 2 y equal to 0, ठीक है। so what is the center of this circle, you can see this is equal to 1 plus a divided by 4, ठीक है, इसको माइनस मल्टीप्लाई करके हाफ कर दिया एंड दिस इज 1 minus a divided by 4, राइट।
Now if I say what is this slope of this line, ठीक है, this is 1 minus a upon 4 minus alpha, ठीक है, y2 minus y1 upon x2 minus x1, this is 1 plus a divide by 4 minus alpha m1, ठीक है, और इसका स्लोप क्या होगा, दिस इज m1 m2, ठीक है, दिस इज into what is the slope of this line, this is 1 minus a by 2 minus 1 upon this minus alpha, so this is plus alpha, so this is y2 minus y1 और x2 minus x1, this is 1 plus a upon 2 minus alpha, and this product should be equal to minus 1 because अगर ये मिड पॉइंट है, कॉर्ड का मिड पॉइंट है, सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो m1 m2 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है. So now if I simplify this, you can see we will get a quadratic equation in alpha. You will get a quadratic equation in alpha, you can clearly see. Okay. Now if there are two distinct chords, can we say alpha ki there should be two values? One will be corresponding to this chord, other will be corresponding to this chord. ठीक है, एक वैल्यू अल्फा की इसकी करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, एक वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ठीक है. सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, यू कैन सी दिस इज अब थोड़ा कैलकुलेशन है, बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज 1 minus a whole square upon 8, this is 1 minus a square plus alpha, this is 1 minus a by 2 plus 1 minus a by 4. I'm just simplifying this equation, plus alpha square is equal to, इसको माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज माइनस 1 minus 1 plus a whole square, 1 plus a square अपॉन 8, ठीक है. इसको अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है हमको. नाउ सी दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 8, दिस इज माइनस 1 प्लस ए अपॉन 4 प्लस 1 प्लस ए अपॉन 2 इंटू अल्फा, और ये प्लस अल्फा स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये दोनों इक्वली हैं, सॉरी इक्वल टू माइनस 1, तो इसको माइनस को भी लेके आके प्लस कर देते हैं. तो दिस इज माइनस माइनस ये प्लस इक्वल टू 0, ठीक है. सो यू कैन सी दिस इज अल्फा स्क्वायर, दिस इज 2 अल्फा स्क्वायर प्लस इफ आई स्टार्ट एडिंग दिस, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज अल्फा 1 माइनस ए अपॉन 2, तो दिस इज प्लस this will become 1 by 2 1 by 4, this will become 3 by 4 1 minus a, ठीक है. ये 3 by 4 1 minus a, right, and this is, you can again see this is 3 by 4, तो ये minus 3 by 4 1 plus a, you can see this is 3 by 4 1 plus a, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया हमने, ठीक है. और you will have this term and this term, so this is 1 minus a square 1 plus a square upon 8 equal to 0. ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है. so now see if I apply this, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर देता हूँ मैं. this is 2 alpha square plus this is alpha, 3 by 4 will be cancelled and this is minus 2 times 3 by 4, this is 3 by 4, this is minus 3 by 2 a, ठीक है. और ये प्लस ये अपना हो गया, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 2a स्क्वायर डिवाइड बाय 8, सो दिस इज, यू कैन से 1 प्लस a स्क्वायर बाय 4, 1 प्लस a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0. दिस इज द एक्सप्रेशन यू हैव, फाइनल एक्सप्रेशन. नाउ सी हियर द कंडीशन इज इफ वी हैव टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा should be greater than 0 because there should be two values of alpha here. You can see this is, there are two values of alpha, one corresponding to this chord, other corresponding to this chord. So you can see if I apply the condition d greater than 0, so b square that is 9 by 4a square, यहाँ पे अल्फा भी था, ये अल्फा, ठीक है. b square minus 4ac, so this is 4ac that is 2 into 1 plus a square divide by should be greater than 0. b square minus 4ac should be greater than 0. So now just simplify this. तो यहाँ से you can see ये 4 तो कैंसिल कर दो. So this is 9a square minus 8 minus 8a square
should be greater than 0, or you can say a square should be greater than 8. So what is the range of a square? A square should be greater than 8, that is 8 to infinity, right? So this is how you can solve this. This is 8 to infinity, that is option 1 will be the answer for this question. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया है, जेईई में ऑलरेडी आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, बस उसी में आपने यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज को चेंज कर दिया है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ठीक है, व्हाट वी हैव डन इज, हमने जो कंडीशन अप्लाई किया है दैट दिस कॉर्ड, दिस लाइन x प्लस y, दिस इज बाइसेक्टिंग टू कॉर्ड्स, देयर शुड बी टू वैल्यूज ऑफ अल्फा करस्पॉन्डिंग टू बाइसेक्शन, राइट? तो यहाँ पे हमने वो कंडीशन अप्लाई किया एंड देन उसका क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन 0 अप्लाई किया. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. अगेन इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, ये ऑलरेडी आपने किया होगा इस टाइप का क्वेश्चन. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. या so now let's take the next question. The question is let P and Q are two distinct points on this circle with center √2 comma √3. so start करते हैं. let's say this is the circle with center √2 comma √3. ठीक है, let O be the origin and OC is perpendicular to, O is origin, OC is perpendicular to both CP and CQ. ठीक है, तो अभी देखो अगर CP और CQ, ये CP और अगर ये CQ, ये P और Q, so if I say OC is perpendicular to, OC is perpendicular to, O is origin, ठीक है, OC is perpendicular to both CP and CQ, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि CPQ will be collinear because सेम लाइन. अभी आपके पास ये एक पॉइंट C है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, तो OC इसके भी परपेंडिकुलर हो और CQ के भी परपेंडिकुलर हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल ये तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर हो जाए और ये से परपेंडिकुलर हो जाए. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है दैट CP CQ दिस विल बी इन अ लाइन. ठीक है, मतलब दिस इज द डायमीटर. तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CP CQ एंड दिस इज द डायमीटर. ठीक है, दिस इज CQ इज द डायमीटर, C इज द सेंटर ऑफ दिस. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो ये इनडायरेक्टली हमने बोला है कि CPQ आर कोलिनियर पॉइंट. ठीक है, एंड नाउ OC इज परपेंडिकुलर टू बोथ CP एंड CQ. तो मान लो ये कहीं भी होगा ओरिजिन, वी डोंट नो कहाँ पर होगा. So let's say this is OC is perpendicular to CP and CQ. Now this is clear. Now area of triangle OCP, इस triangle का जो area है this is given to you. ठीक है, so what is the value of this? So now see what is under root of a1 square plus a2 square plus b1 square plus b2 square, ये आपको find करना है. ठीक है, so first you can see this is a1 b1 and this is a2 b2. Okay, now see if you have to find this, first thing you can see what is this expression. इस expression को आप ध्यान से देखो. तो this is the distance a1 square plus b1 square. तो आप ऐसा देख सकते हैं, this is अगर ये origin है तो you can see this is OP square plus OQ square. This is OP square plus OQ square. Why this is OP square plus OQ square? You can clearly see OP square origin, O origin. ठीक है, O is origin. So this is A2 square plus B2 square under root and this is A1 square plus B1 square under root, OP and OQ. तो आपको OP square plus OQ square, you can see OP square plus OQ square आपको फाइंड करना है. ठीक है, so now let's see this point is √2 comma √3. O is origin. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन से इज एरिया ऑफ ट्रायंगल OCP. अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल OCP की बात करें, ठीक है, दिस इज OC डिस्टेंस, यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस OC, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 + 3 दैट इज √5. ठीक है, दिस इज √5. OC डिस्टेंस जो है दैट इज √5 एंड लेट्स से द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R. दिस इज R बिकॉज ये सेंटर ही है. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCP, इफ यू चेक OCP का एरिया, दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट. व्हाट इज द हाइट? √5 बिकॉज ये परपेंडिकुलर गिवन है. दिस इज √5. दिस इज इक्वल टू √35/2. दिस इज नोन टू यू. ठीक है, तो यहां से यू कैन सी व्हाट इज R इज इक्वल टू √7. ये रेडियस ऑफ द सर्कल इज √7.
ठीक है, ये हमको पता चल गया. नाउ सी इफ यू हैव टू फाइंड दिस a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर op स्क्वायर प्लस oq स्क्वायर. ठीक है, this is we know this is root 7. Now we know this is equal to root 7. ठीक है, रेडियस हमने फाइंड कर लिया, this is root 7 and this is also root 7. I hope you can see, right? So what is OP? अब ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. तो what is OP square? You can say OP square will be equal to root 7 under root of, ये पाइथागोरस अप्लाई कर दो, this is root 7 plus root 7, this is 7 plus 5, root 7 का स्क्वायर प्लस 5 root 5 का स्क्वायर, this is equal to, this is OP square but this is equal to 12. Basically this is 7 plus 7, 7 plus 5 which is 12. ठीक है, और OQ स्क्वायर भी सेम ही आएगा. You can say this is OQ square, this is again same 7 plus 5 which is equal to 12. So what is the answer? This is equal to 24 because ये जो value है, this value is same as this value. I hope this is clear. This is equal to 24. So that is the answer for this question. Easy, right?